application of normal test. All right. However, if the sample size is small, that is less than n, in such cases, what do we do? Wait. Okay. So, however, if the sample size is large, the distribution of the however, if the sample size is large, the distribution of the various statistics, example, this z x bar minus mu upon sigma under root n. All right, this is far from normality, and as such, normal test cannot be applied if n is small. We have done this in central limit theorem that when the size of the sample increases, it tends to big distribution, Normal distribution. normal distribution. Okay. In such cases, where your n is small. Now, if your n is less than 30, then in such cases we cannot apply normal test and we apply t-test and f-test. All right. The exact Okay. The exact sample test can, however, be applied to large samples also, but large samples test cannot be applied to a small sample. All right. So these t-test and f-test we can use it for large sample also, but those tests which are applicable for large sampling theory cannot be applied on tests which have sample size less than 30. That is, for a small size sample size, we cannot apply such tests. All right, the first distribution which comes here is your t distribution, which is also known as student's t distribution. All right, now let x1, x2, xn, where I is equals to 1 to n, be a random sample of size n from a normal population with mean mu and variance sigma square. Then, how will you define student t? Do you remember we have defined chi-square? How we have defined chi-square? Can any one of you tell me what is chi-square? मैम नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर तो काई स्क्वायर बन जाता है. यस, नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर जो है वो chi-square होता है. तो इसी तरह से तुम्हारा t जो स्टैटिस्टिक है वो कैसे डिफाइन होगी? t is your x bar minus mu upon s. Remember, this is not sigma, this is s एस upon under root n. ठीक है, this is your t statistic. ठीक है, and what is your x bar? That is your mean. यस मैम. And capital S square is 1 upon n minus 1 summation I is equals to 1 to n x I minus x bar ka whole square. This is what? This is an unbiased estimate of population variance sigma square. There is a difference between S square and sigma square. And S square is what? This is an unbiased estimate of. स्क्रीन पे जो मैं लिख रही हूँ वो तुम लोगों को विजिबल है? Yes, यस ma'am. मैम.
यस मैम। क्योंकि पहली वाली क्लास में मैं स्क्रीन पे लिख रही थी, उन लोगों को नजर नहीं आ रहा था. So this is an unbiased estimate of sigma square. So this statistic is clear to you. How we will define t statistic? T statistic is nothing but it's just like standard normal We replace variance sigma with S. by, yes, we replace sigma by s. ठीक है, x bar minus mu upon s under root n, because here we are considering a small sample. We are not taking a sample which has a size greater than 50. We are, what we are doing, we are taking a small sample. Is it clear? Yes ma'am. Yes, ma'am. This t statistic follows student t distribution with nu is equals to, that is, nu is what? Your nu is your n minus 1. Nu is this n minus 1. And this is your degrees of freedom. ठीक है? Yes, ma'am. This t statistic will follow student t distribution with degrees of freedom as n minus 1. ठीक है? Now the PDF of it is given by ft 1 upon under root nu. This is your beta function. Do you know how we will open this beta function? And this is 1 upon t square by 2 जो भी है. हाँ, tell me how will you open this beta function? बाइनोमियल थ्योरम से किया था क्या? बाइनोमियल नहीं है, दिस इज बीटा फंक्शन. कैसे इसको ओपन कैसे करते हैं? Distribution. इसे ऐसे ओपन करते हैं. ये जो बीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गामा इंटू गामा न्यू बाय 2 अपॉन, इन दोनों का जो न्यूमरेटर्स में इनका सम 1 प्लस न्यू डिवाइडेड बाय 2. ठीक है? दिस इज योर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब दिस फंक्शन विल ओपन लाइक दिस. All right. Okay, So ma'am. now on, see, this is the difference between a normal distribution and a t distribution. What is the difference between normal distribution and t distribution? Shape of the curve तो almost same है, but the difference is that कि normal distribution में this is thin and this is normal distribution. All right. And for t distribution, the tail are a bit thick. ठीक है? Now, if your nu, that is, what is nu? What is nu? Degree of freedom n minus Degree of N 1. minus 1. n minus 1. Okay. Now, if your nu is equals to 1, all right, then on substituting it in this PDF, what will we get? Substitute this nu in this PDF. Yes. बताइए इस PDF 1 मैम 1 अपॉन अंडर 1 रूट up 1 1, b this will be, बीटा. it will be like this, 1 upon 2 gamma. This is also nu is also 1, so 1 minus 1 will be 0.
तो ये तो 1 हो जाएगा। यस मैम। 1 minus 1 mu is equals to 1 minus 1 0. So मल्टीप्लीकेशन 1 upon yes 1 बोलो प्लस टी स्क्वायर 1 plus 1 plus t t square square होल ब्रैकेट plus 1। yes. So we will get this as 1 upon 1 plus t square. And do you know what is the value of this gamma 1 by 2? root pi. This is under root pi. All right. So for gamma 1 by 2, and there are two gamma 1 by 2, so it will become under root pi and under root pi, and this will be 1 plus t square. Okay. So we will get it as 1 upon pi 1 plus t square. This is Cauchy distribution. This is the PDF of Cauchy distribution. So we can say that when your mu will be equals to 1, this B distribution will tend, sorry, this student T distribution will tend to Cauchy distribution. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now your the PDF of, we will define the PDF, or we will derive the PDF of this T distribution. Fisher T statistic is defined as the ratio of standard normal variate to the square root of an independent chi-square variate divided by its degrees of freedom. ठीक है, Fisher T statistic कैसे डिफाइन होती है? It is the ratio of standard normal variate. Standard normal variate क्या होता है? This Z mu to the, 0 or yes, where your normal distribution with mean 0 and variance 1. 1। ठीक है, this is the standard normal variate, and it is T statistic. Fisher T statistic कैसे define होती है? Z divided by under root of chi-square by n. That is, this is your, जो ऊपर वाला है numerator is your what? Standard normal variate. standard normal. स्टैंडर्ड Right? नॉर्मल वेरिएबल। Yes, and your denominator is your chi-square variate divided by its degrees of N. freedom. अगर your chi-square is following 1 degree of freedom, then your T statistic will be like this: Z upon chi-square by 1. If it will follow 2 degrees of freedom, this chi-square, then it will be divided by 2. So the number of degrees of freedom the chi-square is following, it will be divided by that number only. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so this is your Fisher T's. Now, if your, see, this is chi-square. Now, if your x is following, we have some variable x and it is following chi-square. So what we can do is that we can replace this z upon chi-square by n as z upon under root x by n, because your x is now following chi-square distribution. All right? Hello? Which x, ma'am? See, we have derived the second, the one which is on the right side, we have derived it from the left side. ठीक है, so here this small z is following this capital Z. ठीक है, we have given some variable names, and this x is following your chi-square distribution. So we have written in place of chi-square x, and n is the number of n is the degrees of freedom. ठीक है, कौन किसका माइक ऑन है भाई? Online AMU.
बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, अपने माइक प्लीज ऑफ कर लो। अच्छा, आई विल, ये जो नोट्स है ना, ये बहुत मतलब हौच पौच हैं, तो आई विल remove this PDF and I will give you a different one, because these notes are very, मतलब बहुत खिचड़ पिचड़ हो रही है इसमें, समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये कुछ चीजें इसमें गलती से लिखी हुई हैं, कुछ पार्ट, तो आई विल गिव यू सम अदर नोट्स, डोंट लुक इनटू दिस। ओके, so your Z follows normal distribution with mean 0 and variance 1, and your X is following chi-square distribution with n degrees of freedom. So we have written T as Z upon under root X by n, where this Z is following normal distribution with variable 0 and 1. All right, and this X is following what? Which distribution? Chi-square distribution. With n degrees of freedom. So your Fisher T is defined as the ratio of what? Z upon under root chi-square distribution on n. Yes, this is the ratio of. See, you will always have to remember this, that your T distribution is, your Fisher T is the ratio of your standard normal distribution and chi-square under root of chi-square distribution divided by its degree of freedom. Now we will derive PDF of Fisher's T. ठीक है? Now as we know that this Z follows, this small z is following this Z, which is a standard normal variate. All right, and your X is what? अरे भाई बंद कर दो माइक को, किसका माइक ऑन है भाई? सुमित का माइक ऑन है। और तो सबका ऑफ है ना? ओके, क्योंकि जब माइक ऑन होता है तुम लोगों का और मेरे और कुछ बाहर से आवाज आती है ना गाड़ियों वाड़ी की, वो एकदम मेरे कान में ऐसी लगती है कि पता नहीं जैसे मैं ही बैठी हुई हूँ बाहर। ओके, सो योर what we have to do now is that we have to derive the PDF of Fisher's T distribution. We know that if two variables are independent, तो उनका joint PDF क्या हो जाता है? See, if this is your FZX, which is the joint PDF of Z and X, so it will become the product of FZ and FX when your Z and X are two independent variates. Do you remember that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये शायद याद नहीं होगा तुम लोगों को, पता नहीं कितने लोगों को याद है, because it was there in second semester. See, one thing more I wanted to say is that कि जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, मैं तुम लोगों को असाइनमेंट तो अभी 2-4 दिन में दे दूंगी, और जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तुम लोगों को ये करना है। एक तो मैंने बोला था कि मैं तुम्हारा वाइवा लूंगी, दूसरी चीज ये है कि तुम लोगों के जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग योर सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर, तुम वो मुझे एक एक करके दोगे, क्योंकि अभी जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है तो कोर्स का ही बहुत अच्छा खासा बर्डन रहता है। तो उस टाइम इंशाल्लाह दोनों क्लासेस का, जितनी भी क्लासेस हैं वो उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे जितना बर्डन नहीं हो पाए रहेगा, तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। तो जितनी भी तुम लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में प्रॉब्लम्स हैं वो भी तुम लोग पूछोगे, क्योंकि ये जॉइंट PDF, मार्जिनल, ये सब जो है ना, ये सेकेंड सेमेस्टर में ही था जो तुम लोगों ने मिस कर दिया। अगर क्वेश्चन जो है उसके प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन भी पता चल जाते कौन से लिखने फाइल में, तो हम लोग इस तरह से वो भी लिखते रहते। हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो। मैंने तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो करा तो दिए हैं क्लास में, सिर्फ प्रैक्टिकल में तो उनमें से क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, तो मैं बता दूंगी तुम्हें, फिर तुम लोग वो क्वेश्चन, एक तो Yes, वो ma'am. वाला क्वेश्चन जरूर लिख लेना,
ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन था ना, वो नंबर ऑफ पेजेस वाला, याद है? यस मैम। वो तो जी एटलीस्ट मैम। आज वो इतना काम तो कर ही लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल है और वो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे आया। मैंने उसे दोबारा उस दिन क्लास में लिया भी था जब डिस्कशन करा था। तुम चाहो तो फिर एक दिन मतलब और किसी दिन भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि उसमें कुछ ये मसला था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तुम लोग को समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे आएगा, ठीक है ना? खैर, तो Yes, व्हाट वी वर डूइंग, तो तुम लोगों को ज्वाइंट पीडीएफ पता है? पीडीएफ पता है क्या होता है? यस मैम। क्या होता है पीडीएफ? प्रोबेबिलिटी किसी पॉइंट पे। प्रोबेबिलिटी किसी पॉइंट पे, अच्छा। और फंक्शन ज्वाइंट, उसमें जो दो ओके, वेरिएबल्स आ जाएंगे तो जॉइंट में। हाँ, ज्वाइंट में दो वेरिएबल्स आते हैं और एक कंडीशन तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि अगर दो वेरिएबल्स जैसे z और x इन्वॉल्व है यहाँ पे, और ये z और x आपस में दे आर इंडिपेंडेंट, तो इनका ज्वाइंट पीडीएफ क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ द पीडीएफ ऑफ दीज टू इंडिविजुअल वेरिएबल्स। प्रोडक्ट। Yes. So, as your z, which is following standard normal distribution, and your x, which is following chi-square distribution, they are independent, है ना? So, what we can do is that when we will take the joint PDF of this, we can take the product of the PDF, we can consider the product of the PDF of these z and x. All right, so we can write the joint PDF of z and x will be 1 upon under root 2 pi e to the power minus half z square. What is this? स्टैंडर्ड नॉर्मल। स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ है। और नॉर्मल का क्या होता है? मैंने तुम्हें सिखाया था ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल से नॉर्मल के डिस्ट्रीब्यूट, अगर नॉर्मल पीडीएफ है तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल पीडीएफ कैसे फाइंड करते हैं? उसमें वैल्यूज पुट करके जेड की। वैल्यूज पुट करके z की नहीं, उसमें क्या होता है? 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, ये होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल पीडी, वो सॉरी नॉर्मल पीडीएफ। स्टैंडर्ड नॉर्मल पीडीएफ क्या होता है? विच हैज मीन 0 एंड वेरिएंस मीन 1। 0 सिग्मा। यस मैम। तो वो जो होता है नॉर्मल, वो नॉर्मल का पीडीएफ, दैट इज 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। उसमें हम म्यू और सिग्मा की जगह 0 और 1 रिप्लेस कर देते हैं, तो व्हाट वी विल गेट द पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ऑल राइट, यस सो मैम। दिस इज द पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। और काई स्क्वायर का पीडीएफ तो अभी हमने 10 बार कराया है लास्ट यूनिट में। 1 अपॉन 2 to the power n by 2 gamma n by 2 x to the power n by 2 minus 1 e to the power minus x by 2. This is for n degrees of freedom, यस मैम। है ना? याद है ये जी पीछे मैम। वाली यूनिट का? जी ओके, मैम। अब इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है बिकॉज दिस इज अ टू वेरिएट प्रॉब्लम। सो योर what we will suppose is that we will suppose t as equals to z upon under root x by n. All right, this is your t यही तो है। t क्या है? z अपॉन अंडर रूट x बाय n ही तो है t, है ना? दिस इज योर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, न्यूमरेटर वाला, एंड योर डिनोमिनेटर इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ chi square distribution divided by its degrees of freedom. So this is your t. All right, यस मैम। सॉरी अभी मेरी तरफ से बहुत शोर आ रहा है, एक मिनट। ओके, now what another substitution which we have to make is that u is equals to x, ठीक है? So what we can say is that z is what? Z will become this, z is equals to t under root x by n, है ना?
the denominator term will go in the numerator with t. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now we will substitute these values in this equation. 1 upon 2 pi will remain the same. E to the power minus half z square. It will become t square into x upon n. है ना? Yes, ma'am. And your x to the power n by 2 minus 1 will become बताओ x को हमने किससे सब्स्टिट्यूट करा है? We have substituted x as equals to, U to the power n by 2 minus 1. yes, it will become u to the power n by 2 minus 1 because your x is equals to u. All right? And e to the power minus x by 2 will become e to the power minus u by 2. Minus U by power minus u by 2. अब इसमें हमें जैसे एक जैकोबियन मैट्रिक्स भी करनी पड़ेगी कन्वर्ट करने के लिए जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं मतलब कि 2 वेरिएबल प्रॉब्लम का या मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम का, तो हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स आती है, पता है? No, ma'am. देखो जैसे हम जब नॉर्मली कोई सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जिस तरह से मान लो हमने कुछ सब्स्टिट्यूट करा x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, ऑल राइट, तो हमें क्या होता है dx इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y dy, ठीक है? इस dx की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना 2y dy, है ना? Yes, ma'am. करते हैं ये हो गई सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम की, ठीक है? अब हमारे हैं दो वेरिएबल्स हमारे पास z और x, ठीक है? हमने दो सब्स्टिट्यूशन करे हैं, t को वी हैव सपोज्ड इट एज z अपॉन अंडर रूट x बाय n और u को हमने सपोज करा है एज x। तो हमारे पास ये जो टर्म आ रही है 2y dy, इसको हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, ठीक है? उस जैकोबियन Yes, ma'am. मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आता है उसको रख देते हैं हम इसकी जगह, इस तरह समझ लो आसानी से, बिकॉज वी हैव मेड टू सब्स्टिट्यूशन, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, दैट वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। क्लियर हुई बात या अभी कोई प्रॉब्लम है इसमें? और वो जैकोबियन मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला होता है, दिस, as there are two variables involved, so z and t are, z is z and this z is substituted divided by del upon del t, because we have made substitution of z in terms of t and we have substituted x in terms of u, ठीक है? सो इट विल बी del z by del t and del z by एक बार इससे और एक बार इससे, ठीक है? एंड del t by del x, सॉरी del x by del t and del x by del u। ऑल राइट? Yes, ma'am. सी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी पूछ लो। मैम ये डायरेक्ट फार्मूला है। हाँ, ये हर एक का फॉर्मूला है, जितने भी तुम्हारे जिससे मतलब ये जैकोबियन मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है। तुम्हारी अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो किस तरह से होगा, 3x3 होगी, तो अगर तुम्हारे 3 वेरिएबल्स होंगे तो वो 3x3 मैट्रिक्स बनेगी। अगर मतलब कि 3 वेरिएबल्स का ज्वाइंट निकालना है, जितने का भी निकालना है, उसी हिसाब से मैट्रिक्स का ये फॉर्मूला होता है। z जो है, जो तुम्हारा न्यूमरेटर में आ रहा है, दैट इज व्हाट के तुमने किससे सब्स्टिट्यूट करा है, और डिनोमिनेटर में जो जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हमने क्या करा है,
हमने z की वैल्यू करी है इन टर्म्स ऑफ t, मतलब t को हमें, t हमारा क्या है, z अपॉन अंडर रूट x अपॉन n, एंड u इज व्हाट, u इज इक्वल्स टू x. सो वी हैव मेड दीज टू सब्स्टिट्यूशन. तो हमारी जो जैकोबियन मैट्रिक्स होगी दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ दीज टू. ऑलराइट, दिस इज योर z. ठीक है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इसका किसके साथ हुआ था, t के साथ. ठीक है, नेक्स्ट इज योर x, इसका किसके साथ हुआ था, u के साथ. तो डेल z बाय डेल t होगा और डेल z बाय डेल u होगा. सिमिलरली डेल x बाय डेल t होगा और डेल x बाय डेल u होगा. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द कंबाइंड. हेलो, यस मैम. ओके. जब फिर हम व्हेन वी विल सॉल्व दिस जैकोबियन मैट्रिक्स वी विल गेट दिस एज अंडर रूट u बाय n. अच्छा, इसको निकालोगे कैसे, डेल z बाय डेल t है. ठीक है, तो डेल z बाय डेल t क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू अपॉन एन. अंडर रूट u अपॉन n. और डेल z बाय डेल u, z is equals to t under root u by n. All right, del z by del t will be under root u by n, and del z by del u will be z square upon t square is equals to u by n. है ना, it will be t upon twice of under root n u. हेलो, जी मैम. समझ में आया ये कैसे आया, जब तुम, ये है ना तुम्हारा, z is equals to z is equals to t अंडर रूट u by n. ठीक है, जब हम इसका del z by del t will become half under root, मैं इसका क्या करा है इन्होंने, हाँ हाफ अंडर रूट एन यू इंटू टी. ठीक है, ऐसी डेल एक्स बाय डेल टी विल बी एज देर इज u is equals to x, so there is del x by del t will be 0 and del x by del u will be 1. u is equals to x, therefore del u by del x will be equals to 1. All right, Yes, ma'am. so when we will substitute these values we will get this as under root u by n. हेलो, जी मैम. हेलो, जी मैम. ओके यस मैम. ओके. तो अब जो है हमारा what we have started it from f f z and x, f z and x, as we have changed it in form in terms of t and u, so our resultant will now be f ftu. ठीक है, so it will be 1 upon under root 2 pi e to the power minus, we have substituted these values, we have done how we have substituted, and in the end we have used this under root u by n which we have got from this Jacobian matrix. ठीक है, ओके. चलो, अब बाकी जो है ये कल करेंगे हम लोग. ठीक है, ओके मैम.
ओके मैम। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ काम है फिर डेरिवेशन में, क्योंकि अच्छा खासा वक्त लग जाएगा लंबी डेरिवेशन है। नहीं ये तो अच्छा, एक तो स्टेप्स ही तो है इसमें, नहीं लंबी नहीं है, हो जाएगी अभी 5 मिनट में तो हो जाएगी। तो कल ही करा दीजिएगा। मुझे लगा कि शायद लंबा इसमें वो है, एक और पेज है, लेकिन नहीं, ये तो एक ही आधे पेज की डेरिवेशन है, हो जाएगी। कुछ इसमें कुछ खास है नहीं। चलो अच्छा, कल ही कर लेना फिर, ठीक है। अभी बता दीजिए, कल हल्का सा इंट्रो ओके दे मैम। दीजिएगा इसके बारे में। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, 5 मिनट का है मुश्किल से, तो कल अभी बता देती हूँ। यस मैम, बता दीजिए। ठीक है, अब तुम्हारा ये जो है, ये हमने अंडर रूट यू बाय एन रख लिया। अब तुम्हें पता है मार्जिनल पीडीएफ क्या होता है? नो मैम। मार्जिनल पीडीएफ भी तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर में था। देखिए मार्जिनल पीडीएफ ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई 2 वेरिएबल का पीडीएफ है, जॉइंट पीडीएफ है, उससे का हमें हमें निकालना है। मान लीजिए एफ एक्स वाई है, ठीक है। अब हमें निकालना है वाई का, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें y का निकालना है तो हम इसको एफ एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो वी विल गेट द मार्जिन, मतलब वी विल गेट द पीडीएफ ऑफ y, मतलब हमें सिंगल वेरिएबल का मिल जाएगा। तुम लोग को वो याद नहीं है? मैंने जब वो सेकंड यूनिट शायद स्टार्ट कराई थी तो उसमें मार्जिनल पीडीएफ का एक एग्जांपल, मार्जिनल का जॉइंट का एक एग्जांपल दिया था, कंडीशनल का, कि एक मतलब एचबीओ के प्रोग्राम्स आते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स करके, उसकी मैंने तो वीडियो भी भेजी थी, याद है कुछ? इसीलिए भेजा था कि ताकि तुम लोग को जॉइंट और मार्जिनल का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, याद है? जी मैम, आपने भेजा था। तो वो उसमें उसमें से शायद थोड़ा बहुत उससे क्लियर हो जाए। शायद ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं पढ़ा होगा तो इतना क्लियर नहीं होगा, तो खैर मैंने इसीलिए बता दिया कि अगर मान लीजिए दो दो वेरिएबल प्रॉब्लम है, तुम्हें उसकी एक वेरिएबल को उसका मतलब एक वेरिएबल की फॉर्म में उसका पीडीएफ फाइंड करना है, ठीक है, एक वेरिएबल निकालना, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल, इसको हम कहते हैं मार्जिनल पीडीएफ। वो है जॉइंट, ये है मार्जिनल। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमें, जैसे हमें टी का निकालना है, यहाँ पे अब हमारे पास टी और यू के टर्म में है जॉइंट पीडीएफ, तो हम क्या करेंगे? वी विल integrate it with respect to du. All right, we have to find the marginal pdf of t. अगर हमें marginal pdf of u निकालना होता तो हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते इसे? टी। अगर t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यही बात है, अब हमारे पास जॉइंट पीडीएफ तो आ गया इसका। नाउ व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू किसकी, किसमें, किससे इंटीग्रेट करेंगे? किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट? because we have to find what we have to find, we have to find the marginal pdf of student वो Fisher's t distribution, ठीक है। तो what we have to find, we have to find the हाँ we have to find the pdf of t। तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे इसे? विद रिस्पेक्ट टू यू ही तो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये जी हमारे मैम। पास, ये हमारे पास आ गया पीडीएफ ऑफ, जॉइंट पीडीएफ ऑफ ये, और इसको हम रिस्पेक्ट टू डी यू इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट एफ टी। What we have to find? We have to find FT only, which is the PDF of T distribution, Fisher's T distribution, ठीक है। जब 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 हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू U, अच्छा ये तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, मैं बता देती हूँ कैसे होगा सॉल्व ये। देखो ये 2n/2 है ना, ये यहाँ से आ गया, अंडर रूट 2 का मतलब हो गया 2 to the power 1/2, तो इट विल बिकम 2 to the power n+1/2। ये समझ में आई बात? जी मैम। जी मैम। अब ये एक है ये अंडर रूट n, and this is 1 under root p, so this we have got like, this we have got from here. Is it clear? इतना समझ में आ गया? यस मैम। अब इंटीग्रेशन वाला पोर्शन देखना है, ये तो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हो गए। इंटीग्रेशन में क्या है? e to the power minus u/2। तो e एक तो
सी, एक तो ई की टर्म है ये माइनस टी स्क्वायर यू बाय एन, एक है ई टू द पावर माइनस यू बाय टू। इसमें से अगर मैं माइनस यू कॉमन ले लूंगी, व्हाट आई विल गेट, टी स्क्वायर बाय एन प्लस टू, है ना? जी मैम। यू बाय टू है ना, तो वन बाय टू। ठीक है, यू ओके, यू बाय टू कॉमन लिया है, टी स्क्वायर अपॉन एन, ओके यू बाय टू कॉमन लिया है, ठीक है, खाली यू नहीं लिया, वी हैव टेकन यू बाय टू कॉमन, सो वी विल गेट इट एज टी स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन एंड यू टू द पावर एन माइनस वन बाय टू। यू की टर्म्स किधर है? दिस इज यू टू द पावर एन बाय टू माइनस वन। ऑल राइट, नाउ सी, अब हमें जो है ना इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ये देखो, ये किसका पीडीएफ है? गामा डिस्ट्रीब्यूशन का है ये पीडीएफ। हेलो, हेलो, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है ये? जी जी मैम, शायद। अरे भाई, ये भी ये होता नहीं है, एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन इस फॉर्म में होता है, ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स। तुम लोग को याद तो नहीं रहा? अरे भाई, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है पीडीएफ? बीटा टू द पावर अल्फा, ये मैंने तब भी तो बताया था जब वो कर रहे थे, गामा अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इट्स एंटायर रेंज, तो इज इक्वल्स टू वन आ जाता है ये। फिर यस मैम। इसको जो कांस्टेंट टर्म है यस गामा अल्फा अपॉन बीटा टू द पावर अल्फा उस साइड ले जाओ, राइट साइड, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स इज इक्वल्स टू गामा अल्फा अपॉन बीटा टू द पावर अल्फा। यस मैम। यस मैम। हेलो मैम।